अच्छा जी, तो today the exam paper we are going to be doing is May June 2022 paper 21. ठीक है। ये AS level chemistry है। The first question goes like this: Calcium, magnesium, and radium are group 2 elements. Radium follows the same trends as the other members of group 2. Identify the highest energy orbital which contains electrons in a calcium atom. Sketch the shape of this orbital. ठीक है। तो ऑर्बिटल के बारे में बताना है और उसकी शेप भी ड्रॉ करके दिखानी है। ठीक है बेटा, तो कैल्शियम के एटम के अंदर you have to first of all know the electronic configuration of calcium. ठीक है, the electronic configuration of calcium is 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, and 4s2. How do I know that this is the electronic configuration of calcium? Because these are equal to 20 electrons. Calcium has 20 electrons. ठीक है, and we know that the general rule is that electrons fill in order of increasing energy, right? So this guy has less energy, then this guy has more energy, then this guy has even more energy, this guy has even more energy. So electrons always fill in shells and orbitals with lower energy levels, ठीक है, with lower energy. So this means that if you want to talk about the orbital, and orbital are these guys: s orbital, p orbital, s orbital, p orbital, s orbital. ठीक है। So if you want to talk about the orbital which will have the highest amount of energy, it would be the one at the end, the 4s orbital, right? So 4s orbital would have the highest energy. And if you want to talk about the shape, the s has a shape of spherical shape. ठीक है। P has a dumbbell shape, and those are the only two shapes that you need to know. ठीक है। Next question. Write the equation for thermal decomposition of calcium nitrate. ठीक है। तो calcium nitrate बेटा, any group 2 nitrate when it decomposes thermally produces three products. मतलब यहाँ पे कैल्शियम है तो कैल्शियम ऑक्साइड बनाएगा, साथ में नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एंड साथ में ऑक्सीजन, राइट? तो कैल्शियम नाइट्रेट इज CaNO3, but NO3 is -1 charge, so it will be hold twice. ठीक है, CaNO3 hold twice. When it will undergo thermal decomposition because of heating, it will produce calcium oxide, and along with that, it will produce nitrogen dioxide, and it will produce oxygen. ठीक है, to balance the equation, we always half this and put a 2 over here. The equation gets balanced. ठीक है। अच्छा, यहाँ पे अगर thermal decomposition of calcium carbonate होती, CaCO3, so calcium carbonate thermally decomposes into calcium oxide and carbon dioxide. This is how calcium carbonate thermally decomposes. This is how calcium nitrate thermally decomposes. All right. I hope this makes sense. Next question. Suggest which of the group 2 nitrates, calcium, magnesium, or radium requires the highest temperature to decompose. Explain your answer. ठीक है। तो which nitrate would require the highest temperature to decompose, meaning which nitrate would be most stable, calcium nitrate, magnesium nitrate, या radium nitrate? ठीक है। तो we know that going down the group the stability of nitrates increases. Therefore अगर हम इनको देखें तो which one is at the lowest, which one is at the lowest, सबसे नीचे कौन है ग्रुप में? रेडियम है, राइट? रेडियम इज beneath कैल्शियम एंड मैग्नीशियम बोथ। देयरफॉर रेडियम का जो नाइट्रेट होगा उसको हाईएस्ट एनर्जी चाहिए होगी, तो हम ये लिखेंगे कि नाइट्रेट ऑफ रेडियम रिक्वायर्स द हाईएस्ट एनर्जी या टेम्परेचर टू डिकम्पोज। ठीक है, आई होप दैट मेक्स सेंस। ऑलराइट, on to the next part. Predict what you would observe when aqueous radium chloride is added to aqueous sodium sulfate. Do not refer to temperature changes in your answer. What would you observe when you're adding radium chloride to sodium sulfate? ठीक है। अच्छा बेटा, you should know कि radium chloride is whatever the symbol of radium is. I don't know, I think Ra, Cl2 for example। ठीक है, it's going to react with sodium sulfate Na2SO4। ठीक है, तो आपके पास जो कंपाउंड बन जाएगा वो बन जाएगा RaSO4 प्लस NaCl। इक्वेशन बैलेंस करने के लिए ये ठीक है। Say why this displacement reaction will happen? For two obvious reasons. First of all, double displacement reactions are common practice that happens amongst metals, ठीक है। And then the second thing is
the double displacement reaction becomes permanent if there is a change of state during the chemical reaction. ठीक है, रेडियम क्लोराइड पानी में डिसॉल्व होने वाली चीज है, एक्वस होगा, बिकॉज ऑल क्लोराइड्स आर सॉल्युबल. यू हैव टू रिमेंबर दिस फ्रॉम योर ओ लेवल्स एंड आईजीसीएसई. ठीक है. अच्छा, sodium salts, all sodium salts are soluble in water as well, so this will also remain aqueous. ठीक है, so this is aqueous, this is aqueous, right? However, sulfates of group 2, और आपको ये बात बताई गई है even in A levels, that after magnesium sulfate all group 2 sulfates are insoluble. calcium sulfate, barium sulfate, strontium sulfate, जो भी सल्फेट है वो insoluble है, right? ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये solid है, right? And then sodium chloride is obviously aqueous. So this reaction is showing that a solid is forming, and the solid is forming from group 2. And group 2 elements, when they form ionic compounds, they form ionic compounds which do not have colors. They are white, right? So we say that a white या colorless, a white या colorless precipitate forms. A white या colorless precipitate forms. I hope that makes sense. On to the next question. 2512 Mg is an isotope of magnesium. Determine number of protons and neutrons in an electron of 2512 magnesium. So it is that easy. Number of protons तो बेटा magnesium में उतने ही होंगे जितना उसका atomic number है. Number of neutrons इन दोनों को minus करने से आते हैं, यानी 25 minus 12. 25 minus 12 atomic mass minus atomic number आपको बताता है number of neutrons, which will be 13. ठीक है, सही है. अच्छा, उसके बाद लिखो state the full electronic configuration of atom of magnesium 12. मैग्नीशियम 12 में बेटा 12 इलेक्ट्रॉन्स है, तो आप इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखोगे 1s2 2s2 2p6 3s2, और ये आपकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हो गई 12 इलेक्ट्रॉन्स की पूरी. On to the next question. A sample of magnesium contains three isotopes 25 Mg, 26 Mg, and X. The percentage abundance of three isotopes shown in table 1.1. ठीक है, तो X का मास पूछेंगे AMU. ठीक है, the relative atomic mass AR is calculated by comparing the average mass of isotopes of an element to the unified atomic mass unit. Define the unified atomic mass unit. What is the meaning of unified atomic mass unit या relative atomic mass unit? तो unified atomic mass unit को बेटा define कैसे किया जाता है? Unified atomic mass unit is the mass of 1/12 of a carbon 12 isotope. ठीक है, atomic mass unit या AMU की basically definition, it is the 1/12 of mass of carbon 12 isotope. ठीक है, तो it is the 1/12 of mass of a carbon 12 आइसोटोप. ठीक है, इसको यूनिफाइड एटॉमिक मास यूनिट कहा जाता है. उसके बाद लिखा हुआ है कैलकुलेट द मास ऑफ एक्स यूजिंग डाटा फ्रॉम टेबल 1.1 and AR of magnesium 24.31. in your calculation show your working. ठीक है, तो बेटा बेसिकली बहुत आसान सा होता है. आपको पता है कि AR का फॉर्मूला क्या है? AR का फॉर्मूला है समीशन आइसोटोपिक मास IR मल्टीप्लाई बाय परसेंटेज अबंडेंस डिवाइडेड बाय 100. ठीक है, तो व्हाट वी डू नॉट नो कॉल इट एक्स. ठीक है, वी डू नॉट नो, सही है. तो AR हमें पता है कि 24.31 है. इसको हमें करना है मल्टीप्लाई बाय क्या क्या हिसाब किताब है. सबसे पहले जो अननोन है एक्स मल्टीप्लाई बाय 78.99 प्लस ब्रैकेट जो दूसरे का एटॉमिक मास है वो है 24.99. 24.99 मल्टीप्लाई बाय 10 प्लस 25.98 मल्टीप्लाई बाय 11.01. ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 11.01. ठीक है, डिवाइडेड बाय 100. तो हमारा आंसर 24.31 के बराबर होना चाहिए. तो यानी कि x की वैल्यू ये फाइंड करनी है. ठीक है, whenever there is only one variable you can find it in an equation. तो this is completely solvable. All you have to do is now rearrange stuff. ठीक है, तो first of all 100 goes on this side, multiply by 100 हो जाएगा, is equals to x multiply by 78.19 प्लस 24.99 मल्टीप्लाई बाय 10 249.9 हो जाता है.
249.9 plus 25.98 multiplied by 11.01. Can someone calculate this out for me, please? What is 24.9 plus 25 point, what is 25.98 multiplied by 11.01? 286.14. 286.1. ठीक है. Now add these two together. 536. X multiplied by 78.19 is equals to 24.31 multiplied by 100 माइनस 500 एंड कितना बताया बेटा आपने? 530, 539, 536. 536, 536. ठीक है. 536 से इन सबको माइनस करना है. ठीक है. और आखिर में x कैसे निकल आएगा अगर हम कर देंगे 24.31 मल्टीप्लाई बाय 100 माइनस 536 डिवाइडेड बाय 78.19. ठीक है. तो x की वैल्यू इस तरीके से हमें कैलकुलेट आउट करनी की कोशिश करनी. ठीक है. तो इसका टोटल 24.22. 24 पॉइंट. तो हमारा फाइनल आंसर आ गया 24.2. ठीक है. On to the next question. State one similarity and one difference in the properties of these isotopes of magnesium. Explain your answer. So, what is the similarity and what is the difference between their properties? The answer is fairly simple. बेटा देखें similarity क्या होती है इनके दरमियान में. All isotopes have similar chemical properties. All isotopes have similar chemical properties. तो इसका मतलब they have similar chemical properties due to explain भी करना है तो due to same electronic configuration, but different physical properties due to difference in atomic mass. ठीक है. Due to difference in atomic mass. सही. किसी को कुछ समझ ना आ रहा हो बेटा टर्न योर माइक ऑन एंड आस्क मी. ठीक है. अब आगे चलते हैं. मैग्नीशियम Mg burns in oxygen O2. ठीक है. मैग्नीशियम जो है वो ऑक्सीजन O2 से बर्न करता है. द एक्टिवेशन एनर्जी EA फॉर दिस रिएक्शन इज प्लस 148 किलोजूल पर मोल. स्टेट वन ऑब्जर्वेशन when magnesium burns in oxygen. Do not refer to temperature changes in your answer. जब मैग्नीशियम को ऑक्सीजन में बर्न करते हैं तो क्या आपको ऑब्जर्वेशन नजर आती है? आपको याद रखना है बेटा यहाँ पर विदाउट अ डाउट ये बात सिर्फ और सिर्फ याद करनी है. सही है. और ये बात कैसे याद कर सकते हैं? ये बात याद करेंगे सुन सुन के. ठीक है. तो क्योंकि जब ऑक्सीजन के अंदर मैग्नीशियम बर्न करेगा तो एक ब्राइट व्हाइट कलर का फ्लेम प्रोड्यूस होता है. ठीक है. तो ब्राइट व्हाइट फ्लेम प्रोड्यूसेस bright white flame produces. नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है. स्केच a reaction pathway diagram for reaction that occurs when magnesium burns in oxygen. Label the diagram to show the enthalpy change delta H and the activation energy EA for the reaction. ठीक है. तो वो बोल रहे हैं बेटा कि मैग्नीशियम जो है वो जब बर्न हो रहा है तो उसकी आप एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम या रिएक्शन पाथवे डायग्राम बनाए. तो रिएक्शन पाथवे डायग्राम उसकी यकीनन कैसी होगी? ऐसी होगी. राइट. वाई उसकी ऐसी होगी?
क्योंकि ये ऊपर जो जाता है वो एक्टिवेशन एनर्जी कहलाती है, ठीक है। ये आपकी एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन हो गई, और ये आपकी डेल्टा एच होगी, ठीक है। यहाँ पे आपके रिएक्टेंट्स मौजूद होते हैं, और यहाँ पे आपके प्रोडक्ट्स मौजूद होता है। यहाँ पे जो आपके रिएक्टेंट्स हैं वो कौन है, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन है। जब वो हवा में बर्न करेंगे तो वो क्या बनाएंगे, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाएंगे, राइट। ठीक है। अच्छा, मैग्नीशियम ऑक्साइड का जो वो है सूट, चूरा, राख राख, ऐश, वो भी प्रोड्यूस होती है, तो वो भी ऑब्जर्वेशन लिख सकते होंगे आप, ठीक है। वाइट सूट प्रोड्यूस्ड, वाइट सूट is formed. Next question says cold water reacts slowly with a piece of magnesium to produce with a piece of magnesium to produce a bubble of bath H2. Cold water reacts rapidly with burning water magnesium टू प्रोड्यूस H2 इन एन एक्सप्लोसिव मिक्सचर, ठीक है। मैग्नीशियम जब वाटर से रिएक्शन करता है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस बनता है। एक्सप्लेन व्हाई द रेट ऑफ रिएक्शन इन ऑफ कोल्ड वाटर विद बर्निंग मैग्नीशियम इज ग्रेटर, ठीक है। तो जो आपके पास बर्निंग मैग्नीशियम है उसके साथ कोल्ड वाटर का रिएक्शन जो है वो इतना हाई क्यों होता है, क्योंकि when magnesium is burning its temperature is very high, right, its temperature is very high, we have provided with the activation energy, ठीक है। तो we can say that atoms of burning magnesium, atoms of burning magnesium have higher kinetic energy, ठीक है। तो it's all about collisions, when there is high temperature there is high energy, high kinetic energy, ठीक है। and hence collide with H2O molecules with greater force, greater force and greater frequency। ऑलराइट, तो दिस इज हाउ आप ये वाला क्वेश्चन आंसर करेंगे। अब इसके बाद हमारे पास जो है नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। Nitrogen molecules N2 contain two atoms attracted to each other by a triple covalent bond. Describe how triple covalent bond forms in N2 molecule. Refer to orbital overlap and hybridization in your आंसर, ठीक है। तो आप इसमें हाइब्रिडाइजेशन के बारे में बताएंगे और ओवरलैप के बारे में भी बताएंगे। तो हम लोगों को पहले तो ये बताना पड़ेगा कि नाइट्रोजन के पास तीन पी ऑर्बिटल्स हाफ फिल्ड होते हैं, ठीक है। ईच नाइट्रोजन हैज थ्री हाफ फिल्ड पी ऑर्बिटल्स, ठीक है। कैसे पता बेटा, मुझे मुझे याद है, आपको याद ना हो तो आप नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कर सकते हैं। नाइट्रोजन में होते हैं 7 इलेक्ट्रॉन्स, 1s2, 2s2, 2p3। 2p3 का मतलब है पी के अंदर जो तीन ऑर्बिटल है तीनों में एक एक इलेक्ट्रॉन, ठीक है। टोटल पी में 6 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, हर ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। पी के पास तीन ऑर्बिटल होते हैं, तो तीन इस तरह से ऑर्बिटल आपके बन गए, ठीक है। आपके तीन ऑर्बिटल इस तरीके से बन गए। अब उसके बाद आपके पास क्या सीन है, उसके बाद आपके पास ये सीन है कि जो नाइट्रोजन है जो नाइट्रोजन है उसके जो ये हाफ फिल्ड तीन ऑर्बिटल्स हैं, पी ऑर्बिटल्स, यही कोवैलेंट बॉन्डिंग करेंगे। ये तीनों ऑर्बिटल्स वो एक और नाइट्रोजन से शेयर करेगा, यकीनन एक और नाइट्रोजन भी होगा ना इसके पास तीन हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स होंगे, ठीक है। तो दीज थ्री
half filled orbitals overlap with three half filled orbitals of a second nitrogen atom, comma, forming forming अच्छा, अब ये बताना है कि पाई बॉन्ड और सिग्मा बॉन्ड कैसे बनते हैं, ठीक है, क्योंकि हम लोगों को इसमें ये बताना है रेफर टू ऑर्बिटल ओवरलैप, ठीक है। तो थ्री हाफ filled orbitals of a second nitrogen atom forming a sigma bond first by direct overlapping and two pi bonds by sideways ओवरलैपिंग, ठीक है। तो दो आपके पास पाई बॉन्ड बनता है बेटा, एक सिग्मा बॉन्ड बनता है। सिग्मा बॉन्ड हमेशा फ्रंट ऑन ओवरलैपिंग से बनता है, पाई बॉन्ड हमेशा साइडवेज ओवरलैपिंग से बनता है। इस तरीके से आपके पास जो है ये सारे कंपाउंड्स के वो बन रहे होते हैं, ठीक है। अब उन्होंने हाइब्रिडाइजेशन के बारे में पूछा है, तो दिस प्रोड्यूसेस sp hybridization in nitrogen molecule. Next question, nitrogen oxides NO2 and NO are produced in internal combustion engines. Release of these gases into the atmosphere leads to formation of photochemical smog. Outline how nitrogen oxides are involved in formation of photochemical smog. तो बेटा बहुत आसान होता है, इसको बहुत आसानी से बता सकते हैं आप। ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, ऑक्साइड्स ये आपने पढ़ा है नाइट्रोजन के चैप्टर के अंदर, चैप्टर नंबर 2.4 खोल के देखिएगा, ठीक है। होता ही है, पहले जनरली आपको सिखाता हूँ। बेसिकली व्हाट हैपेंस फर्स्ट इज ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन दे रिएक्ट विद द अनबर्न्ड ऑर्गेनिक फ्यूल्स दैट पास आउट ऑफ द साइलेंसर या एग्जॉस्ट पाइप्स ऑफ द कार, ठीक है। कार के इंजन से जो फ्यूल अनबर्न्ड बाहर आ गया, उस फ्यूल के साथ ये ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन मिक्स हो जाते हैं टू फॉर्म पीएएन, ठीक है। पीएएन पेन्स, पेन्स क्या होते हैं, पर ऑक्सी एसिटाइल नाइट्रेट्स। पर ऑक्सी एसिटाइल नाइट्रेट्स मिक्स विद स्मोक एंड फॉग टू प्रोड्यूस फोटोकेमिकल स्मोक, ठीक है। तो ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन रिएक्ट विद VOCs। VOCs कौन होते हैं, volatile organic compounds। Oxides of nitrogen react with VOCs, volatile organic compound, to produce PANS, PANS, PANS। PANS क्या है, पर ऑक्सी एसिटाइल नाइट्रेट, ठीक है। फुल स्टॉप। PANS mix with smoke or fog uh, smoke or fog in air, mix with smoke or fog in air to produce photochemical smoke, photochemical smoke। The next question is construct an equation to demonstrate how a catalytic converter reduces the amount of nitrogen oxide gases released into the atmosphere, ठीक है। तो आपको एक इक्वेशन बतानी है कि हाउ अ कैटालिटिक कन्वर्टर रिड्यूसेस अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन ऑक्साइड गैसेस रिलीज इन एटमॉस्फेयर। तो
बेसिकली ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन को किस तरह से कन्वर्ट किया जाता है, तो इसके लिए कैटालिटिक कन्वर्टर की जो फेमस इक्वेशन है वो लिख लेते हैं बेटा। ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन एंड ऑक्साइड्स ऑफ कार्बन आर बोथ कन्वर्टेड इनटू ऑक्साइड ऑफ कार्बन एंड नाइट्रोजन मॉलिक्यूल, ठीक है। दिस इज अ मोर स्टेबल एंड सेफ ऑक्साइड ऑफ कार्बन देन दिस, ठीक है। ये वाला बहुत बुरा है आपकी सेहत के लिए। Next question. N2 is very unreactive. It is difficult to make ammonia NH3 directly from its element, but it can be made from NH4Cl, ठीक है। तो N2 जो है NH4Cl से बन सकती है, लेकिन NH4 सॉरी NH3 जो है NH4Cl से आसानी से बन सकती है, लेकिन N2 से नहीं बन सकती। आइडेंटिफाई रिएजेंट एंड कंडीशंस रिक्वायर्ड टू मेक NH3 फ्रॉम NH4Cl। NH4Cl से आपको क्या कंडीशन चाहिए होती हैं बेटा? ओ लेवल्स के अंदर से पढ़ते हुए आ रहे हैं या आईजीसीएसई के अंदर से पढ़ते हुए आ रहे हैं, पेपर नंबर 4 एटीपी वाला जो पेपर होता है, जो आईजीसीएसई पेपर 6 होता है, उसके अंदर टेस्ट में लिखा हुआ है कि whenever there is an ammonium compound, you add an alkali and heat, ammonia gas will release. Whenever there is an ammonium compound, you add alkali and heat, ammonia gas will release, ठीक है। तो अमोनिया गैस आपके पास रिलीज होने के लिए अल्कलाई कौन सा है? सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन, सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन, NaOH एंड सॉरी नॉट हाइड्रोजन, NaOH एंड हीट। नॉर्मली NaOH एंड हीट, हाइड्रोजन तो उधर H उधर लिखना था, हीट सही है। Next question. 25 centimeter cube of 0.1 mole per dm cube HCl is added to a beaker and its pH is recorded. 50 centimeter cube of zero point 0.1 mole per dm cube NH3 is added to the HCl in 5 centimeter cube portions. The pH of mixture is monitored until all NH3 is added. HCl is a strong bonded lauric acid. What is a bronzed lauric acid? Bronzed lauric acid वो भी स्ट्रॉन्ग का मतलब कि कंप्लीटली आयोनाइज, ठीक है। विच substance, chemical substance, which completely ionize in aqueous solutions to produce H positive ions, जिन्हें हम प्यार से ब्रॉन्स्टेड की जबान में प्रोटॉन donors कहते हैं, ठीक है। These guys are called proton donors. Okay. Next question we have is NH3 is a weak base. Construct an equation that shows the behavior of NH3 as a weak Bronsted Lowry base when dissolved in water. So it is a weak base. What happens when it is acting as a base when it is dissolved in water? The Bronsted Lowry base is something which accepts proton. ठीक है, something which accepts proton. And where does it accept proton from? It accepts proton from water. ठीक है। तो ये वीक क्यों है बेटा? वीक इस वजह से होगा क्योंकि यहाँ पे इक्वेशन जो है वो कैसी होगी? इरिवर्सिबल, मतलब सॉरी रिवर्सिबल होगी। इक्वेशन विल बी रिवर्सिबल, राइट। ठीक है, आप रिवर्सिबल इक्वेशन यूज करते हुए ब्रॉन्स्टेड लॉरी एसिड या ब्रॉन्स्टेड लॉरी बेस आप बनाओगे। इज इक्वल्स टू NH4 पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव। तो ये आपका एक प्रोटॉन गेन हो गया, तो ये ब्रॉन्स्टेड लॉरी बेस कंसिडर हो सकती है, ठीक है। ये अब ब्रॉन्स्टेड लॉरी बेस कंसिडर की जा सकती है। ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। On figure 2.1, sketch a graph to show the change in pH which occurs when HCl is titrated with NH3 as described. जब HCl को NH3 के साथ टाइट्रेट करते हैं तो क्या होगा? देखें बेटा, 25 सेंटीमीटर क्यूब HCl था, और अगर सेम कॉन्सेंट्रेशन का HCl और NH3 है, तो क्योंकि बिकॉज HCl एक H पॉजिटिव आयन डोनेट करता है और NH3 वही एक H पॉजिटिव आयन एक्सेप्ट करता है, तो यानी कि दोनों का रिएक्शन रेशो 1:1 है। अगर आप केमिकल इक्वेशन भी ड्रॉ करके देखें, तो दोनों का रिएक्शन रेशो 1:1 ही आएगा, ठीक है। जैसे कि मिसाल के तौर पे ये देखिए, मैं यहाँ पे लिखता हूँ।
produces NH4Cl plus H2. So if you observe, the ratios are 1:1, which means that 25 centimeter cube of HCl will be diluted by 25 centimeter cube of ammonia. So at 25 centimeter cube, at 25 centimeter cube आपका जो है इक्वलेंस पॉइंट आना चाहिए, ठीक है, 25 सेंटीमीटर क्यूब पे इक्वलेंस पॉइंट आना चाहिए. Right, this will be your equivalence point, right, this will be the equivalence point. At this point the pH should be completely equal. अच्छा, शुरुआत में HCl होने की वजह से pH 1 या 2 पे होगा, तो pH शुरुआत में बिल्कुल कम होगा, बिल्कुल कम होगा, बिल्कुल कम होगा. At exactly 25 the there is a sharp increase. और अब अमोनिया जो है, बिकॉज 7 8 9, तो अमोनिया का pH वीक वीक बेस है, pH 9 या 10 से ज्यादा नहीं हो सकता. 9 pH या 10 pH से ज्यादा वीक बेस का नहीं होता, तो इससे फौरन से ही ये ऐसे चली जाएगी, ठीक है, तो ये फौरन से ऐसे चली जाएगी. दिस विल बी द डायग्राम ऑफ टाइट्रेशन ऑफ एन एसिड विद अ वीक बेस, ठीक है, स्ट्रॉन्ग एसिड टाइट्रेटिंग विद अ वीक बेस. नेक्स्ट क्वेश्चन, लिक्विड्स दैट कंटेन मॉलिक्यूल्स ऑफ टी स्मेल लाइक लेमन, ठीक है, लिक्विड्स जिनमें टी ओ लेमन की तरह का होता है. मॉलिक्यूल ऑफ टी एग्जिस्ट एज पेयर ऑफ स्टीरियोआइसोमर्स. नेम द टाइप ऑफ स्टीरियोआइसोमेरिज्म शोन बाय मॉलिक्यूल ऑफ टी. एक्सप्लेन योर आंसर. टी में किस किस्म की आइसोमेरिज्म हो रही होगी? तो टी के अंदर बेटा जहां तक मेरा ख्याल है दोनों ही किस्म की आइसोमेरिज्म हो रही होनी चाहिए, ठीक है. क्यों दोनों किस्म की आइसोमेरिज्म होनी चाहिए? क्योंकि यहाँ पर हमारे पास जो है डबल बॉन्ड भी है, जिसकी वजह से ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होनी चाहिए. एंड ओवर हियर आई कैन क्लियरली सी दैट दिस कार्बन इज जॉइंट टू फोर डिफरेंट ग्रुप्स. दिस कार्बन इज जॉइंट टू फोर डिफरेंट ग्रुप्स, ठीक है. um, तो दिस इज योर कायरल सेंटर and this should give you your geometrical isomerism, but because one carbon is connected to two of the same things, यहाँ पे geometrical isomerism नहीं होगी, तो हम ये बोलेंगे molecule T only shows stereoisomerism, ठीक है, molecule T only shows stereoisomerism. और क्यों वो stereoisomerism शो करता है? Because it contains a chiral center, as it contains a chiral center. Full stop. उसके बाद है, two organic products are produced when sample of tea is heated under reflux with excess acidified potassium KMnO4. Draw the structure of two organic products from this reaction in the boxes, ठीक है. तो आपके पास जो है, जब एसिडिफाइड KMnO4 से उसका रिएक्शन करवाया, जब उसका रिएक्शन एसिडिफाइड KMnO4 से करवाया, तो दो किस्म की प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस हुई. टू टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस, ठीक है. तो पहली तो ऑर्गेनिक प्रोडक्ट जो आपके पास प्रोड्यूस हुई होगी, वो क्या प्रोड्यूस हुई होगी? आ, देखें बेटा, एक तो आपको अंडरस्टैंड करना है कि अब इसके अंदर कौन कौन सी जगह जहाँ ऑक्सीडेशन हो सकती है विद हॉट एसिडिफाइड KMnO4, एक्सेस ऑफ हॉट एसिडिफाइड KMnO4, ठीक है, कॉन्सेंट्रेट KMnO4. देखें, अब आपके पास यहाँ पे बहुत सारे आंसर सही हो सकते हैं मेरे ख्याल में. देखें, बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ दिस डबल बॉन्ड, हॉट कॉन्सेंट्रेटेड आपने KMnO4 लिया है, तो ये यहाँ से ब्रेक होना चाहिए. यहाँ पे आपका एक कीटोन बनना चाहिए. कीटोन बनने के साथ साथ इस साइड पे आपका ये एल्डिहाइड बनना चाहिए. फिर वो एल्डिहाइड बाद में कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाना चाहिए. दूसरी चीज, ये जो अगर आप देखें तो यहाँ पे जो कार्बन है उसका एक बॉन्ड हाइड्रोजन से हुआ हुआ है, एक ऑक्सीजन से हुआ हुआ है, डबल बॉन्ड, और ये आपका पूरा स्ट्रक्चर चलता हुआ जा रहा है. तो दिस कार्बन इज ऑल्सो गोइंग टू गेट ऑक्सीडाइज, ठीक है. तो पहले तो यही स्ट्रक्चर बना लेते हैं कि जिसके अंदर कार्बन ऑक्सीडाइज हो रहा होगा, एल्डिहाइड से कार्बोक्सिलिक एसिड बन रहा होगा, ठीक है. तो पूरे का पूरा स्ट्रक्चर जिसमें सेम रहेगा.
जिसमें पूरे का पूरा स्ट्रक्चर सेम रहेगा। 1 2 3 4, ओके। तो अब इसके बाद जो है हम लोग एक टॉपिक्स के वो बना देंगे इस तरीके की। देन वील डू दिस। हाउ फार अहेड डू वी हैव टू ड्रॉ जस्ट अ बिट मोर, ठीक है। एंड 1 2 और फिर 3, 1 2 और फिर ये 3, ठीक है। और इसी पे डबल बॉन्ड होगा। लाइक दिस, ठीक है। ओ सॉरी, बल्कि यहाँ तो होगा ही नहीं। डबल बॉन्ड तो आपका कार्बोक्सिलिक एसिड का होगा ना, तो कार्बोक्सिलिक एसिड तो ऊपर बनता है इस तरह डबल बॉन्ड, ठीक है। ये हो गया आपका। एंड दिस विल बिकम OH, ठीक है। तो दिस विल बी द स्ट्रक्चर ऑफ योर ऑर्गेनिक कंपाउंड टी। बिकॉज ऑफ ऑक्सीडेशन यहाँ पे एल्डिहाइड की वजह से अब कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा, ठीक है। दूसरी सूरत में आपके पास क्या होगा? दूसरी सूरत में आपके पास जो टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट्स बन रहे होंगे वो बन रहे होंगे ये। एक तो आपके पास कीटोन बन रहा होगा, ठीक है, वाई कीटोन। बिकॉज देखे बेटा, यहाँ जो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, यहाँ जो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है उसके इस तरफ दोनों कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड से जुड़ने वाली दोनों टांगे वो मजीद कार्बन से ही ज्वाइन हुई है। तो वेन एवर द कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन दैट फॉर्म्स बिकॉज ऑफ ऑक्सीडेशन हैज टू कार्बन जॉइनिंग ग्रुप्स, इट विल नेवर एवर चेंज एनीथिंग अदर देन कीटोन, इट विल फॉर्म कीटोन एंड कीटोन ओनली, ठीक है। और दूसरी तरफ क्या है? एंड करके लिख देते हैं। दूसरी तरफ आपके पास एल्डिहाइड बन रहा होता है, जो कि बाद में चेंज हो जाता है इनटू कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। तो एल्डिहाइड जो है वो बाद में चेंज हो जाता है इनटू कार्बोक्सिलिक एसिड। दिस इज हाउ दिस कंपाउंड इज फॉर्म, ठीक है। सही है। तो ये कंपाउंड बनता कैसे बेसिकली? अब इस स्ट्रक्चर को देखिए बेटा, इस स्ट्रक्चर को देख के आप देख सकते हैं यहाँ से इतना पार्ट टूट के अलग हो जाता है और वो बना देता है ये एल्डिहाइड, ठीक है। और यहाँ से इतना पार्ट टूट के अलग हो जाता है, ये बना देता है एल्डिहाइड। तो ये डबल बॉन्ड 1 2 3, यूं 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 यूं, ठीक है। ये स्ट्रक्चर आपके पास बन जाते हैं। ये कंपाउंड बन गया आपका इतना ऑक्सीडेशन की वजह से, ठीक है। और इस डबल बॉन्ड को यूटिलाइज करने वाला ये कार्बन भी, ये भी जो है आपका डबल बॉन्ड यूटिलाइज करेगा और ये आप आ जाए वापस, ठीक है। सही है। आई होप दिस मेक सेंस। तो इस तरीके से आपके पास जो ये कंपाउंड्स बन रहे होते हैं। ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट। फिगर 3.2 शोज टू रिएक्शंस ऑफ टी। टी के मजीद दो रिएक्शन शो किए हुए हैं। अगर आप गौर फरमाएं टी की, यहाँ पे तो रिडक्शन हो गई है क्योंकि एल्डिहाइड से अल्कोहल बन गया है। और यहाँ पे टी का कुछ ना कुछ तो हुआ है। क्या हुआ है टी के साथ भाई? यहाँ पे टी का डबल बॉन्ड खत्म हो गया गालिबन। यस, यहाँ पे टी का डबल बॉन्ड खत्म हुआ है और OH लग गया है टी में, ठीक है। तो टी की हाइड्रेशन हो गई है। टी की क्या हो गई है? हाइड्रेशन हो गई है। एक तरफ ये प्रोडक्ट बनी है, एक तरफ ये प्रोडक्ट बनी है। वो बोलेगा कि कौन मेजर प्रोडक्ट है कौन माइनर प्रोडक्ट, डिसाइड करके बताओ, ठीक है। तो हम लोग वो भी डिसाइड कर लेंगे। बहरहाल पहले जो है वो पूछा, आइडेंटिफाई सूटेबल रिएजेंट फॉर रिएक्शन 1। रिएक्शन 1 के लिए सूटेबल रिएजेंट कौन है? LiAlH4 और Na Na
PH4, ठीक है। ये दो आपके पास बड़े मशहूर हैं, ठीक है। उसके बाद आपके पास लिखा हुआ आइडेंटिफाई द रिएजेंट एंड कंडीशंस नीडेड फॉर रिएक्शन टू। इफ यू लुक एट रिएक्शन टू बेटा, द डबल बॉन्ड डिसअपीयर्स एंड अल्कोहल बना है। तो अल्कीन से कॉरेस्पॉन्डिंग अल्कोहल हाइड्रेशन रिएक्शन से होता है। उसके लिए आपको जो रिएजेंट चाहिए होता है वो चाहिए होता है स्टीम, H2O at 300 डिग्री सेल्सियस and 60 to 70 atmosphere pressure, and what else? Phosphoric acid, H3PO4, H3PO4 as catalyst. Next question, suggest which product formed in reaction 2 has a higher yield. Explain your answer. तो मेजर प्रोडक्ट ये होगा या ये होगा बेटा? उसके लिए आपको ये देखना पड़ेगा कि जिस पे हाइड्रोक्सी ग्रुप फंक्शनल ग्रुप लगा है उस पे कितने हाइड्रोजन है। तो इफ यू लुक एट दिस कार्बन जिस पे हाइड्रोक्सी फंक्शनल ग्रुप लगा है, इसके लगने से पहले इस पे यहाँ भी कार्बन है, यहाँ भी कार्बन है, यहाँ भी कार्बन है, तो इसके पास जीरो हाइड्रोजन है, ठीक है। तो ये जो है ये आपका क्या फॉर्म हुआ है? टर्शियरी अल्कोहल फॉर्म हुआ है। क्या फॉर्म हुआ है? टर्शरी अल्कोहल फॉर्म हुआ। और अगर ये अल्कोहल नहीं बना होता तो एक लम्हे पहले ये टर्शरी कार्बोकेटाइन कंसिडर हो रहा होता, ठीक है। सही, अच्छा। अब इस तरफ अल्कोहल कैसा प्रोड्यूस हुआ है? ये कार्बन जो है जिस हाइड्रोक्सी से लगा हुआ है वो हाइड्रोक्सी दो कार्बन से ज्वाइन है, तीन कार्बन से नहीं। तो ये जो है ये आपका सेकेंडरी अल्कोहल होगा। तो किसका चांस ज्यादा होता है? अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकोव रूल, टर्शरी कार्बोकैटायन इज मोर स्टेबल व्हिच विल लीड टू प्रोडक्शन ऑफ टर्शरी अल्कोहल। तो हम बोलेंगे कि Q इज मोर Q विल बी द मेजर प्रोडक्ट। Q will be the major product as it contains tertiary carbocation as contains tertiary carbocation as intermediate, ठीक है, which is more stable than secondary carbocation as more stable than secondary carbocation according to the Markovnikov rule. To the according to the Markovnikov rule. Full stop. On to the next question. Separate samples of Q and R are added to separate test tubes containing acidified K2Cr2O7 and heated. ठीक है, तो इनको samples को K2Cr2O7 के साथ heat कर दिया गया है। Predict the observation for each test tube. Explain your answer in terms of functional groups present in Q and R. तो Q and R के साथ क्या होगा? देखें बेटा, because this is a tertiary alcohol, we say that tertiary alcohols do not undergo oxidation. However, this side contains an aldehyde which will undergo oxidation, ठीक है। तो हम ये बोलेंगे कि Q, the aldehyde group of Q, the aldehyde group of Q undergoes the aldehyde group of Q undergoes oxidation
and produces carboxylic acid. Functional group. Full stop. The OH group does not oxidize in Q as it is tertiary. As it is tertiary hydroxy group. ठीक है. अच्छा. नेक्स्ट बात, अगर आर की बात की जाए, आर के अंदर भी बताना है, ठीक है. तो ऑन द अदर हैंड, द OH group in R undergoes oxidation टू प्रोड्यूस. अच्छा, ये OH ग्रुप अगर आप देखें, ये सेकेंडरी अल्कोहलिक ग्रुप है. सेकेंडरी अल्कोहल की ऑक्सीडेशन से कीटोन बनता था टू प्रोड्यूस कीटोन. फुल स्टॉप. सही है. ये होगा आपका आंसर. उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, व्हेन PCl5 is added to separate samples of Q and R at room temperature, both react vigorously. Complete the equation shown in equation figure 3.4 to describe the reaction that occurs when R reacts with PCl5. This reaction is called दिस रिएक्शन इज यूजुअली कॉल्ड क्लोरीनेशन, राइट. इस रिएक्शन को क्या कहते हैं? क्लोरीनेशन कहते हैं. ठीक है. और क्लोरीनेशन के अंदर आपके पास क्या होता हुआ नजर आ रहा होता है? आपको एक कंपाउंड बनाना पड़ता है. बेसिकली इसके अंदर आपके पास ये Cl5 जो है, हेलोजिनो अल्केन जो है, वो इस अल्कोहल को रिमूव करा देगा, इस अल्कोहल को सेपरेट करा देगा. ये एक फेमस रिएक्शन था. PCl5 रूम टेम्परेचर पे OH को सेपरेट करा देता है. PCl3 जो है वो हायर टेम्परेचर पे सेपरेट कराता है, लेकिन 3 हाइड्रोक्सी फंक्शनल ग्रुप सेपरेट कराता है. तो 1:3 रेशो रिएक्शन होता है. खैर. एक दो तीन चार, एक दो तीन चार, देन एक दो तीन, what? एक दो तीन, चार. ठीक है. देन पाँच. ठीक है. देन छः, सात. आई थिंक हमें ये छोटा करना पड़ेगा बिकॉज दिस हैज बिकम क्वाइट बिग. ठीक है. तो थोड़ा छोटा कर देते हैं और थोड़ा रोटेट भी कर देते हैं ताकि सीधा हो जाए सब कुछ. ठीक है. अच्छा. अब इसके अंदर थोड़ी सी फाइन ट्यूनिंग मजीद करनी पड़ेगी बेटा. स्टार टू. ठीक है. इधर होगा, छोड़ के तीसरे पे होगा. ठीक है. एंड देन duplicate this to make our oxygen. ऑक्सीजन. ठीक है. ऊपर कुछ भी नहीं बना हुआ. सही है. बेटा देखें, PCl5 जो है वो आपका क्लोरीन जो है यहाँ पे लगा देगा, मतलब ये OH जो है ये आपका Cl से रिप्लेस हो जाएगा. ठीक है. सही है. उसके अलावा बाकी कुछ भी फर्क नहीं पड़ता. ठीक है. यही केमिकल रिएक्शन था. प्लस HCl, दो क्लोरीन सेपरेट हो जाते हैं और POCl3 हो जाता है, राइट. POCl3. POCl3 आपका कंपाउंड बन जाता है. ये तीन प्रोडक्ट्स आपके बनने होते हैं. सजेस्ट व्हाई सैंपल्स ऑफ Q and R must be dried before PCl5 is added. Include a relevant equation to support your answer.
देखें बेटा, PCl5 जो है वाटर के साथ भी बहुत हाई रिएक्शन करता है, एज PCl5 reacts vigorously with water to produce white fumes of hydrogen chloride। फुल स्टॉप। ठीक है, PCl5 ये वाटर के साथ रिएक्शन करता है बेटा, और ये क्या प्रोड्यूस कर देता है, ये प्रोड्यूस कर देता है HCl, और HCl के साथ साथ जाहिर सी बात है फॉस्फोरिक एसिड भी प्रोड्यूस करता होगा। ठीक है, H3PO4। ठीक है, इक्वेशन बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे बेटा, 5Cl है यहाँ पे, तो यहाँ पे 5 लगाना पड़ेगा, यहाँ पे 5 लगा दिया तो अब 8 हाइड्रोजन हो गए और 4 ऑक्सीजन, तो यहाँ पे 8 आएगा, सॉरी यहाँ पे 4 आ जाएगा। ठीक है, तो इक्वेशन आपकी बैलेंस हो जाएगी। All right. So with that reaction, we move on to the next question. Compound V is a liquid, contains 77.2% carbon, 11.4% hydrogen, 11.4% oxygen. V has a relative molecular mass of 280. Calculate the molecular formula of V showing your working. ठीक है, तो first we find the empirical formula. First we find दी एम्पेरिकल फार्मूला। ठीक है, एम्पेरिकल फार्मूला निकालने की बेटा बहुत इजी टेक्निक होती है, उस टेक्निक को फॉलो करते हुए चलते हैं। ठीक है, तो एम्पेरिकल फार्मूला कार्बन इज टू हाइड्रोजन इज टू ऑक्सीजन। ठीक है, कार्बन इज टू हाइड्रोजन इज टू ऑक्सीजन। कार्बन इज 77.2%, हाइड्रोजन इज 11.4%, एंड ऑक्सीजन इज also 11.4%। कोई बच्चा ये भी कंफर्म कर लो कि when you add these together to all of these add up to 100%, they should। ठीक है, खैर, carbon divided by its atomic mass, hydrogen divided by its atomic mass, and oxygen divided by its atomic mass। Can anyone give me the answers to the following? I'll do one of these। 11.4 होगा इसका, मुश्किल वाला मैंने कर दिया, आसान वाला आप कर दें। 77.2% divided by 12, what is the answer? 6.4. 6.4%। And what about 11.4 divided by 16? 0.71. 0.71। ठीक है, and then the rule is that whatever values we get whatever values we get, परसेंटेज का साइन नहीं लगेगा क्योंकि बेसिकली हमने अब मोल्स निकाल लिए होते हैं। ठीक है, whatever values we get we divide by the smallest number, 0.71, 0.71, 0.71। ठीक है, सही है, तो लाइक दैट हम लोग जो है अब मोल्स ऑफ कैल्शियम निकाल लेंगे। मोल्स ऑफ कैल्शियम कहाँ से आ गया, बल्कि मोल्स ऑफ लिखने की जरूरत भी नहीं है, डायरेक्टली निकाल लेते हैं सिंप्लीफाई करके। जी, तो हमारा फाइनल क्या हो जाएगा अब इसका, ये तो हो जाएगा 1, 9, 16, 1. ये 9, ये 16। ठीक है, तो हमारा जो केमिकल फार्मूला हो गया या मॉलिक्यूलर फार्मूला हो गया, एम्पेरिकल फार्मूला पहले, एम्पेरिकल फार्मूला इज गोइंग टू बी इक्वल टू C9H16O। ठीक है, C9H16O, ये आपका एम्पेरिकल फार्मूला हो गया। मॉलिक्यूलर फार्मूला का बेटा अब क्या फार्मूला होता है, मॉलिक्यूलर फार्मूला कैन बी कैलकुलेटेड वेरी सिंपली, वेरी इजीली। मॉलिक्यूलर फार्मूला इज इक्वल्स टू, जो भी आपका एम्पेरिकल फार्मूला आता है बेटा उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय एम्पेरिकल फार्मूला मास से। ठीक है, जो भी आपका एम्पेरिकल फार्मूला होता है उसको मॉलिक्यूलर मास डिवाइड बाय एम्पेरिकल फार्मूला मास से करना होता है। C9H16O मल्टीप्लाई बाय 280 डिवाइडेड बाय एम्पेरिकल फार्मूला मास निकालना है, तो 12 टाइम्स 6 प्लस 16 टाइम्स 1 प्लस, सॉरी सॉरी सॉरी, हाँ सही, बल्कि 16 टाइम्स 1 प्लस
16 हाइड्रोजन एक मास वाले हैं, 1 टाइम्स 16, एक ऑक्सीजन 16 मास वाला है, ठीक है। तो व्हेन वी ऐड दीज ऑल टुगेदर, 16 16 32 एंड 12 टाइम्स 9, सॉरी 12 टाइम्स 9 इज 108। तो 108 में 2 तो 110 और 30 तो 140, तो ये हो गया 140 एग्जैक्ट, ठीक है। तो यानी कि बेसिकली 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा सब कुछ। तो हमारा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला वी का हो जाएगा C18H32O2। ये हमारा केमिकल फॉर्मूला हो जाएगा, बिकॉज दिस बेसिकली बिकम्स 2, ठीक है। Next question. V contains two types of functional groups, a carboxylic acid and an alkane. V के पास दो किस्म के functional groups हैं, एक carboxylic acid और एक alkane. Describe a chemical test and observation which confirms presence of carboxyl functional group. Carboxyl functional group हमें कैसे पता चलेगा इसके पास carboxylic acid है, इसका कोई टेस्ट बता दो। तो टेस्ट इसका बहुत आसान होता है बेटा, बिकॉज कार्बोक्सिलिक एसिड इज एन एसिड, इट विल रिएक्ट विद मेटल कार्बोनेट्स एंड प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड गैस। दिस इज अ टेस्ट फॉर ऑल एसिड्स, ठीक है। सही है। तो ऐड सोडियम कार्बोनेट टू अननोन सैंपल, ऐड सोडियम कार्बोनेट टू अननोन सैंपल, ठीक है। एफरवेसेंस ऑफ एफरवेसेंस ऑफ कलरलेस गैस विच टर्न्स लाइम वाटर मिल्की, ये ज्यादा कंफर्मेशन है, विच टर्न्स लाइम वाटर मिल्की, ठीक है, या क्लाउडी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ 3.196 ग्राम सैंपल ऑफ Br2 reacts completely with 2.8 grams of V. Calculate how many alkene functional groups are present in one molecule of V. Show your working, ठीक है। तो बेटा देखो आसान सीन है, Br2 जो है वो कितना लिया, 3.196 ग्राम, ठीक है। सही, Br2 लिया 3.196 ग्राम। इसके मोल्स कितने हैं, मोल्स निकालने हैं आपको, मोल्स ऑफ, ठीक है। तो हाउ डू यू डू इट, बेसिकली Br2 को उसके एटॉमिक मास से आपको क्या करना होगा, डिवाइड। Br2 का एटॉमिक मास पीरियोडिक टेबल में देख लेते हैं, 80 होता है वैसे तो, क्या है भाई, 79.9 है, ठीक है। तो 79.9 रख लेते हैं, 79.9, ठीक है। व्हाट विल बी द आंसर बेटा, 3.196 डिवाइड बाय 79.9, zero ओ point सॉरी, zero four नहीं 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 नहीं, टाइम्स टू करें ना, क्योंकि दो ब्रोमीन है, ब्रोमीन डायटोमिक मॉलिक्यूल है, ठीक है। तो मतलब zero point 3.196, zero two 0.02 मोल्स, ठीक है। सही है, अच्छा। मोल्स ऑफ वी भी निकाल लेते हैं, मोल्स ऑफ वी, ठीक है। वी बेटा कितना दिया हुआ है हमें, 2.8 ग्राम्स दिया हुआ है, और वी का एटॉमिक मास ऊपर कहीं इन्होंने फरमाया था कि 280 होता है, ये रहा, ठीक है। Mr 280 है, तो 280 इज इक्वल्स टू 2.8 डिवाइड बाई 280, 0.01 आई बिलीव, ठीक है। 100 टाइम्स छोटा है, राइट। Yes, sir. ऑल राइट। Br2 is to V की अगर हम बात करें तो 0.02 is to 0.01 है, ठीक है। अगर एक मोल V की बात करें तो उसके अंदर दो, अगर यहाँ X लिख दें तो कितने ब्रोमीन इसके अंदर आपके पास, कितने ब्रोमीन के मोल्स आ जाएंगे, ठीक है। तो X की वैल्यू आप कैलकुलेट आउट कर सकते हैं, सिंपली बाय 0.02 डिवाइडेड बाय 0.01 मल्टीप्लाई बाय 1, यानी कि आंसर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है। तो यानी कि मैं ये कह सकता हूँ, यानी कि मैं ये कह सकता हूं कि hence 2 moles of Br2 react completely with 1 mole of V, ठीक है। तो V के जो
वी जो है उसके अंदर 2 मोल ब्रोमीन कंप्लीटली रिएक्ट कर रहे हैं, और एक डबल बॉन्ड को खत्म करने के लिए 1 मोल ब्रोमीन चाहिए होता है। तो नंबर ऑफ अल्कीन फंक्शनल ग्रुप्स कितने हो गए यहाँ पे? 2 हो गए, ठीक है। तो देयर फॉर वी मस्ट कंटेन 2 कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड्स इन इट्स स्ट्रक्चर, ठीक है। वी जो है वो उसके पास कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होंगे जो वो अपने स्ट्रक्चर में कंटेन करता होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, डब्ल्यू एक्स एंड वाई have same molecular formula C5H10O. WX and Y are added separately to different reagents. Observation for these reactions are described in table 4.1. बेटा 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजीन डाला, तो ये भी ऑरेंज प्रेसिपिटेट, यानी इसमें भी कार्बोनाइल कार्बन है, ठीक है। इसमें भी कार्बोनाइल कार्बन है, इसमें भी कार्बोनाइल कार्बन है, ठीक है। सही है। तो डब्ल्यू एक्स एंड वाई ईच कंटेन अ कॉमन फंक्शनल ग्रुप। नेम द फंक्शनल ग्रुप दैट इज प्रेजेंट इन ऑल थ्री कंपाउंड्स। कार्बोनाइल फंक्शनल ग्रुप। क्या कहलाता है ये फंक्शनल ग्रुप? कार्बोनाइल functional group, ठीक है। Anything that gives a positive test in 2,4-dinitrophenyl, and what is the positive test? That orange precipitate is seen. What is the positive test? Orange precipitate is seen, ठीक है। सही है, that is the positive test for dinitrophenyl hydrogen. Next question, state the formula of yellow precipitate produced when X is added in alkaline I2, ठीक है। आपके पास जो अल्कलाइन I2 है, तो अल्कलाइन I2 के अंदर जब आपने एक्स को डाला तो येलो प्रेसिपिटेट जो बना वो किस चीज का बनता है? अल्कलाइन आयोडीन जो है इसको कहते हैं आयोडोफॉर्म टेस्ट है। इसको क्या कहते हैं? आयोडोफॉर्म टेस्ट। और आयोडोफॉर्म टेस्ट, क्लोरोफॉर्म, आयोडोफॉर्म, इट्स ऑलवेज 1 कार्बन 1 हाइड्रोजन एंड 3 हैलोजेंस। क्लोरोफॉर्म होता है तो Cl3 होता है, CH Cl3, और आयोडोफॉर्म होता है तो CHI3 होता है। दिस इज द रीजन फॉर प्रोडक्शन ऑफ व्हाइट, सॉरी येलो प्रेसिपिटेट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, W could be one of 4 structural isomers. Draw a skeletal formula of 2 possible structural isomers of W. Describe the type of structural isomerism shown. W जो है बेटा वो 2 किस्म का स्ट्रक्चरल आइसोमर हो सकता है। W के अंदर आपके पास ऑरेंज प्रेसिपिटेट नजर आया, जब फेलिंग रिएजेंट डाल के वार्म किया तो ऑरेंज रेड रेड प्रेसिपिटेट हुआ, यानी कि W इज एन एल्डिहाइड, राइट। W इज एन एल्डिहाइड। W जो है बेटा एक एल्डिहाइड है। अब बात यह है कि W जो एल्डिहाइड है, एल्डिहाइड में तो आपका कार्बोनाइल कार्बन हमेशा कोने पे लगा हुआ होता है, हमेशा कॉर्नर पे होता है, राइट, ठीक है। और इसका केमिकल फॉर्मूला क्या है? C5, राइट। तो आपके पास एक तो स्केलेटल फॉर्मूला में 1 2 3, कभी भी सही क्यों नहीं बनते, 1 2 3 4 5, ठीक है। ये 5 कार्बन बन गए। अब इससे एक एल्डिहाइड ज्वाइन हुआ हुआ होना चाहिए है, ठीक है। तो एल्डिहाइड यहाँ पे ज्वाइन कर देते हैं। ओ, सही है। तो ये आपका पहला पहला आइसोमर है, सही है। कार्बन नंबर 1 2 3 4 5, 5 कार्बन, ठीक है। 5 कार्बन होने की वजह से दिस कंपाउंड इज योर एल्डिहाइड, ठीक है। सही है। अच्छा, इसका केमिकल फॉर्मूला C5H10O ही होना चाहिए, तो ये बात भी कंफर्म कर लेते हैं। CH3 3 कार्बन, CH2 5, CH2 7, CH2 9, एंड इस कार्बन से एक हाइड्रोजन लगा होता है 10। हाँ, 10 हाइड्रोजन पूरे हो रहे हैं, सही है। तो ये बात बिल्कुल ठीक है। दिस इज वन ऑफ देम एल्डिहाइड्स, ठीक है, 5 कार्बन वाला। अब आपको एक आइसोमर बनाना है स्ट्रक्चरल, तो आप क्या करें? बस आप ब्रांच बना दें, ये लास्ट वाली चेन जो है ये इधर लगा दें, सही है। तो लेट्स डुप्लीकेट दिस होल थिंग, सही है। बट इंस्टेड ऑफ दिस डिलीट दिस, ठीक है। आपके पास कार्बन यहाँ पे कार्बन चेन लगी हुई हो सकती है, ठीक है। आपके पास कार्बन चेन यहाँ पे लगी हो सकती है, या यही कार्बन चेन आपके पास यहाँ भी लगी हुई हो सकती है, ठीक है। इट्स बोथ ऑफ देम आर करेक्ट, ठीक है। टाइप ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म दैट यू कैन सी, दिस इज कॉल्ड पोजीशन आइसोमेरिज्म। इसको क्या कहते हैं?
सॉरी, पोजीशन आइसोमेरिज्म नहीं, चेन आइसोमेरिज्म, ठीक है, इसका क्या नाम होता है? चेन आइसोमेरिज्म, ठीक है। दिस इज व्हाई इज इट कॉल्ड चेन आइसोमेरिज्म? बिकॉज द साइज ऑफ चेन इज डिक्रीजिंग। पहले जो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन थी वो 5 कार्बन की थी, अब लॉन्गेस्ट कार्बन चेन 4 कार्बन की है। तो मसला, परेशानी, दुख तकलीफ? आई होप नॉट। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, फिगर 5.1 शोज द मास स्पेक्ट्रम ऑफ कीटोन जेड C5H10O। ठीक है, तो उसमें मास स्पेक्ट्रम पे ये 29 मास पे आ रहा है, ठीक है। ये 29 मास पे एक चीज है। ये क्या है? 57 है, 57 मास पे एक चीज है। और ये 86 मास पे एक चीज मौजूद है, ठीक है, C5H10O की। यूज द इंफॉर्मेशन इन फिगर 5.1 to suggest the formula of fragments with m upon e peaks at 29, 57, reduce the identity of z। ठीक है, z की आइडेंटिटी भी डिड्यूस करने को बोल रहे हैं। सही है। कीटोनिक आइडेंटिटी हमें बतानी है, ठीक है। तो बेटा देखें, ये जो आपके पास मास स्पेक्ट्रोमेट्री होती है ना, उसमें 29 मास सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज का होता है, और वो है C2H5 का फ्रैगमेंट, राइट। C2H5 का फ्रैगमेंट ऑलवेज 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 जो है आपके पास इस तरीके का कंपाउंड बनाता है। चलो, तो यहाँ पे नीचे ड्राइंग करना शुरू करते हैं कीटोन की। हम ये कह रहे हैं कि जो आपका कीटोन है वो है C2H5, ठीक है, फिर कार्बन, देन इट मस्ट हैव अनदर ketonic group and then another C2H5 must be present, वरना पॉसिबिलिटी ही नहीं है कि ऐसा हो सके, ठीक है। अच्छा, तो टोटल मास क्या है C5H10 होगा? अगर हम देखें तो 12 टाइम्स 5 प्लस 10 प्लस 16, ठीक है। तो 12 5 60 प्लस 10 प्लस 16, 60 प्लस 10 70 प्लस 80 86, ठीक है। तो ये तो इसका मॉलिक्यूलर आयन पीक है पूरी, ठीक है। 29 पे C2H5 की आयन पीक है, इसको तरीके से लिख दिया, ठीक है। अब 57 मास वाली पीक कौन सी होगी? देखें बेटा, अगर ये फ्रेगमेंट निकल गया तो बाकी बचा ये फ्रेगमेंट, राइट, ठीक है। अच्छा, टोटल था 86, 86 में से 29 माइनस कर दें, क्या आंसर आता है? व्हाट इज 86 माइनस 29? 57। 57 आ रहा है, ठीक है। तो द रिमेनिंग पीक मस्ट बी दिस, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन C2H5, दिस इज द रिमेनिंग पीक, ठीक है। तो ये दो आपके पास होंगे। अब आपको इसकी आइडेंटिटी बतानी है। आइडेंटिटी का मतलब है इसका नाम बताना पड़ेगा। इसका नाम बताने के लिए आप देख सकते हैं कि तीन, 2 कार्बन के बाद थर्ड कार्बन पे कीटोन लगा हुआ है और 5 कार्बन वाला है, तो 3 पेंटानन, ठीक है। या फिर कुछ लोग इसको पेंटेन 3 1 भी कहते हैं, सही है। पेंटेन 3 1 भी कहते हैं, 3 पेंटानन भी कहते हैं। ये इसकी आइडेंटिटी हो गई, सही है। नीचे इसका स्ट्रक्चर भी ड्रॉ हुआ है। ये हमारा क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। एंड विद दैट, वाओ, दिस एग्जाम पेपर इज कंप्लीटेड एज वेल, ठीक है। तो दिस वाज द लास्ट क्वेश्चन एनालिटिकल टेक्निक से। आई होप यू गाइस अंडरस्टैंड। बेटा, अगर कुछ समझ नहीं आया है तो आप लोग पूछ सकते हैं। रिकॉर्डिंग तो हो गई।